રિયાલિટી, ઇન્ફોર્મેશન અને એન્ટરટેનમેન્ટ સભર કાર્યક્રમ અમદાવાદ ઇનસાઇડ. આપનો માનીતો અસલ अमदावादी कार्यक्रम એટલે જ अमदावाद इनसाइड. तो भारत के जो वेद उपनिषद के अंदर जो ज्ञान है, तो समस्त यूनिवर्स को कब बदला जाए, कैसे बदला जाए, उनका ज्ञान है. खाने जैसा अन्न नहीं रहा, पीने जैसा पानी भी नहीं रहा और श्वास लेने जैसी हवा भी नहीं रही. यहाँ अलौकिक ज्ञान दिया जाता है. ये सृष्टि में कोई जगह पर एक ज्ञान मैंने नहीं सुना है. और यहाँ आकर मुझे अनेक अनुभूतियाँ हुई जिसमें दिव्य स्वरूप का अनुभव है. हमें ज्ञान और योग सीखने के साथ साथ इसको धारण करने की पावर भी मिलती है. हमें जो ज्ञान कहीं भी नहीं मिलता वो ज्ञान यहाँ हमें मिला है. आत्मा से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो हमें समझना चाहिए. સાલ 2008માં અમદાવાદ ઇનસાઇડની ટીમ આ સંસ્થાની મુલાકાત લઈ ચૂકી છે અને હવે ફરી એકવાર સાલ 2022માં આપ દર્શક મિત્રોને અમે લઈને આવી પહોંચ્યા છીએ વિશ્વ પરિવર્તક ઈશ્વરીય વિદ્યાલય ન્યૂ રાણીપ ચેનપુર અમદાવાદમાં. અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં જેટલી પણ આત્માઓ છે એ બધી તમારી ભાઈઓ છે, તમારું કુટુંબ છે, બેહદનું કુટુંબ છે. જેમાં કે આપણે નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો થઈ જઈએ, લેડીઝોને હોય કે છોકરાઓની ને હસબન્ડની ઘરની બધી જવાબદારીઓ હોય, जिससे कि हम अगले जन्म अपना सुधार सके, हम इस जन्म मरण के चक्र में बार बार ना आते रहे. प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फ्री है. यूट्यूब पे आप सिंपली सर्च करिए बापूजी दशरथ भाई पटेल. આપનો માનીતો અસલ अमदावादी कार्यक्रम એટલે જ अमदावाद इनसाइड. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी. દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણી સાથે છે માલતીબેન. તો ચાલો એમને એક્સપિરિયન્સ શેર કરીએ. પરમ શાંતિ માલતીબેન. માલતીબેન, તમને એવો વિચાર ક્યારે આવ્યો કે હું આત્માનું જ્ઞાન મેળવું, હું મારી આત્મા માટે કંઈક કરું, લોકોના કલ્યાણ માટે કંઈક કરું? મને નાનપણથી જ હતું કે આત્મા વિશે જ્ઞાન મેળવવું કે શું છે ઉપરની દુનિયા. તો મમ્મી સાથે હું વારંવાર વાતો કરતી રહેતી કે મારા મામા નથી એટલે હું મામા વિશે તો કે ચંદા મામા છે ત્યાં તારું મામાનું ઘર છે. તો એમ કરતાં તો મને એમ થતું કે બધા નીચે છે તો આપણે કેમ ઉપર નથી રહેતા મામાની સાથે. એટલે મને નાનપણથી એવો વિચાર આવતો. પછી મેં રામાયણ મહાભારતના શાસ્ત્રો વિશે જાણ્યું, ગીતાનું. બાળકો મોટા થયા, હસબન્ડ જોબ જાય, બાળકો જતા રહે, ત્યારે હું વચ્ચે બપોરનો સમય હોય તો એમ થયું કે હવે મારે શું કરવાનું. તો મને શોખ હતો કે મારે શાસ્ત્રોનું વાંચન ને મને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ આવે એમાં. તો મેં યુટ્યુબ ખોલ્યું પછી કે ચલો આમાંથી કંઈક જ્ઞાન લેવું. એટલે મેં બધી સંસ્થાઓના જ્ઞાન લીધા, પણ મને એમાં જે મને જોતું હતું એ મને ના મળ્યું. પછી ધીમે ધીમે મને બાપુજીનો વિડીયો મળી ગયો અને એમનો ફર્સ્ટ વિડીયો મારે મુક્તિ જીવન મુક્તિનો વિડીયો હતો. તેમનું મેં સાંભળ્યું તો ગમ્યું કે આ જ્ઞાન આત્મા વિશે છે તો સારું છે. આ મેડિટેશન કરવાથી, આત્માનું જ્ઞાન મેળવવાથી તમારા જીવનમાં કંઈક પરિવર્તન આવ્યું હોય એવું તમને લાગ્યું? હા, જીવનમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવે છે. જેમાં કે આપણે નાની નાની વાતમાં ગુસ્સો થઈ જઈએ, લેડીઝોને હોય કે છોકરાઓની ને હસબન્ડની ઘરની બધી જવાબદારીઓ હોય, તો નાની નાની વાતમાં ચીડાઈ જાય, ગુસ્સો આવી જાય. તો આ મેડિટેશનથી એ એક છે કે જે માઇન્ડમાં આપણે ગુસ્સો આવે એ ઓછો થઈ જાય છે, માઇન્ડ શાંત થઈ જાય છે. અને પ્લસ એ છે કે ડિપ્રેશનમાં ઘણા બધા અત્યારે જતા રહેતા હોય, જે એકલા પડી જતા હોય છે. કે અત્યારના સમયમાં શું છે કે બાળકો જતા રહેતા હોય, ફોરેનનો ક્રેઝ વધારે છે, હસબન્ડ જોબે જાય તો મોટે ભાગે લેડીઝો એકલી પડે છે. અને પછી એમને છે ને તે આવું બધું જ્ઞાનનું કે આ વિડીયો જો કે એવું ના હોય, જે તે વાતો થતી હોય અડોશી પડોશીઓ જોડે ને એમાં પછી એ લોકો શું ડિપ્રેશનમાં વધારે જતા રહે. તો આ મેડિટેશનથી આ એક મોટો ફાયદો છે. हम जानते हैं कि एक मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है
जो आज सभी अपने लाइफस्टाइल में अपना रहे हैं। और अक्सर ये देखा जाता है, लोग बोल रहे हैं कि हमें जितना हो सके योग करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर जितनी जागृति हो रही है योग के प्रति, चाहे हमारे वेस्टर्न कल्चर की तरफ से और हमारे यहाँ के जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी। तो योग के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगी कि योग है क्या बेसिकली। योग एक शाब्दिक शब्दों में अगर मैं समझाऊं बहुत सिंपल तरीके से, तो योग है जोड़, योग है कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या है? कनेक्शन किसका किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, राइट। तो अभी हमें समझना होगा कि अभी जो योग जो चारों तरफ समझाया जा रहा है वो शारीरिक योग के बारे में समझाया जा रहा है। जो योग है वो आत्मा, मन, बुद्धि से भी परे परमात्मा के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ों को हम पहले समझेंगे कि योग को समझने के लिए पहले तीनों चीज़ों को समझते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए। अभी अगर मैं शुरुआत करूँ तो हमारा जो योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र, उसके अंदर हमें 8 अंग बताए गए हैं योग के, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा और समाधि। तो अब ये 8 जो अवस्थाएं हैं, तो ये 8 अवस्थाओं को पार करके हम योग द्वारा हम अपनी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करते हैं। जी, तो आत्मा से परमात्मा की ओर हम कैसे जा सकते हैं? अब इसको सफ़र शुरू करने के पहले हमें सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे अंदर ये खोज होनी चाहिए कि मैं हूँ कौन। हमें इस लक्ष्य से अगर हमें बढ़ना है आगे, तो ये इसका प्रश्न अपने आप से सभी को पूछना चाहिए कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, हमारा इस धरती पे किस पर्पस से जन्म हुआ है, राइट। तो हमें आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले अपने मन, बुद्धि और अपने संस्कारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम कई 198 करोड़ साल से इस धरती लोक में आए हुए हैं। हमारे अंदर इतने सारे कर्म बंधनों की रिकॉर्डिंग्स हैं, हम इतने सारे कर्म चक्र में आ चुके हैं कि अब हमें वो कर्म चक्र हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर जो संचित जन्म के कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे आत्मा के ऊपर इतने सारे आवरण चढ़ चुके हैं कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमें आत्मा को देखने की शक्ति नहीं है, आत्मा को जानने की शक्ति नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। अब मेडिटेशन की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको कहा, सिर्फ ये शारीरिक योग जो हम करते हैं, इससे हम सिर्फ मन को कंट्रोल में थोड़ी देर कर सकते हैं। प्राणायाम से हम श्वासों को नियंत्रण कर सकते हैं। और अष्टांग योग में हमें ये समझाया जाता है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं, जब भी मेडिटेशन की बात होती है तो जो यम, नियम और आसन तक लोग पहुंच जाते हैं, प्राणायाम तक पहुंच जाते हैं। लोग श्वासों पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं, श्वासों को। और प्रत्याहारा जो हमारी जो अगला हमारा जो अंग है अष्टांग योग का, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, क्योंकि प्रत्याहारा मतलब ये है कि जब वो अपनी मन और अपनी प्राण वायु है, दोनों को वो नियंत्रण करना सीख जाए। क्योंकि योग सूत्र में समझाया गया है कि जब हम अपने प्राण वायु को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे विचार भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सबसे बड़े इशू तो आज ये है कि कोई भी अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ में शांत अनुभव नहीं करता। मतलब थोड़ी देर के लिए आसन और ये प्राणायाम को फॉलो करते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता, क्योंकि एट द एंड उनको यहाँ से बाहर तो अपनी वही स्ट्रेसफुल नियत कर्म की लाइफ में आना ही है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? आवश्यक है ज्ञान, ठीक है। तो जब हम ज्ञान समझते हैं, ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? अपने आप को पहचानने से, अपने आप को जानने से। तो जब हम अपने आप को जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, अब मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा स्वरूप पवित्र, परम शांत और परम प्रकाश का है। तो हमें अपने आप को एक साधारण नहीं समझना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की वो दिव्य रचना है, और यदि हम उस परम पिता परमात्मा की दिव्य रचना है तो हम उनका अंश हुए, और अगर हम उनका अंश है तो हम भी उनकी तरह अनंत और असीम शक्तियों से भरे हुए हैं। देखिए, एक बहुत साधारण सी बात ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि जीवन रूपी जो ये संसार है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको करना क्या है, ये आपको चॉइस करना है। चॉइस आपके हाथ में है करनी। आपको पानी बाल्टी में भरना है या चम्मच में लेना है, ये आपकी मर्जी है। तो चॉइस सब कुछ फ्री विल परमात्मा ने दी है। तो इस फ्री विल को समझना चाहिए हमें। जब हम ये फ्री विल को समझ जाएंगे और अपना पर्पस ढूंढेंगे, क्योंकि खाना पीना भोगना ये तो एक नॉर्मल जानवर भी करता है, तो हम हैं कौन?
हम हैं आत्मा, आत्मा परमात्मा का उस अंश। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हमारा जो यहाँ पे हमें बेहद के ज्ञान में जो योग सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि हम बेहद की परम आत्मा है, हम दिव्य आत्मा है और हम इस बेहद की दुनिया से आए हैं, मतलब इस धरती से नहीं आए हैं, इसके ऊपर असीम दुनिया है, अनंत दुनिया है। इस धरती से ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, अनंत गैलेक्सीज है, अनंत यूनिवर्स है, अनंत मल्टीवर्स है, बेहद की दुनिया है, मतलब जो इस आँखों से नहीं दिखती, इन आँखों से नहीं दिखती है, ठीक है। तो वो हमें समझना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का विस्तार करना पड़ेगा। अभी हमें साइंस भी समझा रही है कि वो मल्टीवर्स तक पहुंची है, उन्होंने मल्टीवर्स के चित्र भी दिखाए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ये दुनिया कितनी बड़ी है, हम अपने आप को सीमित करके नहीं रखते। अब वापस मैं अगर आपको योग पे आती हूँ तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि हम इस धरती के नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम ये बांध के रखा है हमने अपने आप को बॉन्ड में कि हम इस धरती के, इसलिए हम इससे ऊपर के बारे में नहीं देख सकते। हमने सब कुछ ये शरीर को ही मान के रखा है, क्योंकि ये दुनिया 5 तत्व की है, इसलिए दुनिया भी इसलिए हम ये शरीर को भी हम ज़्यादातर समय शरीर के बारे में ही सोचते हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते। तो हमें आत्मा के बारे में सोचना है। अब अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करिए योग के लिए। शारीरिक मानसिक तनाव हो, शारीरिक तनाव हो, इमोशनल आपको प्रॉब्लम्स हो, तो ये आप योग से ठीक कर सकते हैं। लेकिन योग कैसा करना है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। आपको योग कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने आप से, पूरी दुनिया से डिस्ट्रैक्ट होना है। तो अभी हमें शुरू कैसे करना है योग, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट होने के लिए हमें अलग अलग आप इसके लिए साधन यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ म्यूज़िक लगा सकते हैं, एक ऐसी शांति प्रिय जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए वायुमंडल का प्रभाव बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, क्योंकि जैसा वायुमंडल होता है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिस्कनेक्ट करने के बाद अपना सारा ध्यान जो है हमें अपना आत्मा में लगाना है, आत्मा में केंद्रित करना है। आत्मा कहाँ पे है, हमारी भ्रुकुटी में, दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। हमें वहाँ पे स्थिर करना है अपना मन, बुद्धि और अपनी सारी इंद्रियों से परे जाके अपना सारा ध्यान और सारा अटेंशन हमें आत्मा में लगाना है। अब फिर आत्मा में लगाने के बाद क्या करना है, उसमें हो गया। अब उसमें देखना क्या, आत्मा कैसी है, सबसे बड़ा प्रश्न भी यही आता है कि हम आत्मा को देखें क्या, जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, अब उसको हम अनुभव कैसे करें, राइट। अब ये एक ऊर्जा है हमारी आत्मा में से, लगातार एक परम प्रकाश, हम सब परम लाइट के थे, हम सब लाइट बीइंग्स थे, हम परम प्रकाश के थे, ठीक है। अब हम अपनी वो शक्तियाँ खो बैठे हैं, हमारी आत्मा में बहुत सारे आवरण चढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर इस आवरणों का भी मैं आपको बताऊं, हमारे योग सूत्र में समझाया गया है कि आत्मा के ऊपर अलग अलग लेयर्स होती है। जैसे हमारा सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर उसके बाद हमारा मनोमय कोश, फिर तो अलग अलग प्रकार के कोश हमारी आत्मा में चढ़े हुए हैं। तो हमें उसके भीतर अपनी आत्मा के अंदर ये देखना है कि मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ, मैं बेहद के आनंद स्वरूप में। हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, सबसे पहले हमें समझना है। आत्मा का स्वरूप है पवित्रता, प्रकाश और परम शांति। ये मेरी आत्मा का स्वरूप है। आत्मा कैसी है, आनंदमय है। जो दुख और सुख की अवस्था है वो इस शरीर की है, वो मन की है। देखिए ये हमें समझना पड़ेगा। हर्ष और विषाद का जो भी हमारा कारण होता है वो मन डिसाइड करता है कि इसमें मुझे हर्ष मिल रहा है, इसमें मुझे विषाद मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आत्मा जो है वो तो आत्मा तो आनंदमय है, सुख से भरी हुई आत्मा है। उसका स्वरूप ही परम आनंद, नित्य आनंद है, ठीक है। तो हमें उस स्वरूप में स्थित होना है। आपको अपने अंदर असीम प्रकाश देखना है, असीम प्रकाश, और उस प्रकाश के अंदर आपको उस परम शांति की अनुभूति करनी है। और उसके बाद आपको अपने आप को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना है। क्योंकि देखिए जब तक आप, पावर हाउस कौन है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आत्मस्वरूप तो ले लिया, आपने मेडिटेशन भी कर लिया, लेकिन मेडिटेशन के बाद आप जोड़ किससे रहे हो अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योग इटसेल्फ एक जो शब्द है वो बता रहे हैं कनेक्शन। अब कनेक्शन आप किसकी ऊर्जा से कर रहे हो, कौन सी ऊर्जा से जोड़ रहे हो। क्योंकि जब तक आप सही जगह पे नहीं जुड़ रहे हो तो, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे वही शक्ति आपके अंदर आने वाली है। तो किसका ध्यान कर रहे हो, तो हम जब देवी देवताओं को करते हैं तो उनका ध्यान कर रहे हैं तो उनकी शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो हम डायरेक्ट परम पिता परमात्मा को जब
परम ब्रह्म परमेश्वर को जब हम याद करते हैं तो हमें उनकी शक्ति मिलती है और फिर हम एहसास करते हैं कि हम ही ब्रह्म समान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो मैं ही उसके जैसा ही हूँ। परमात्मा ने मुझे अपने जैसा ही बनाया है। उन्होंने जब रचना करी थी तो एकदम शुद्ध पवित्र करी थी, पाक करी थी, पावन पवित्र दुनिया की रचना करी थी और आत्मा भी ऐसी पवित्र बनाई थी। लेकिन धीरे 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 हम उस अवस्था में गिरते गिरते, अपने संकल्पों के कारण गिरते गिरते इस अवस्था में आ गए कि आज हम अपने आप को भूल बैठे हैं। तो हमें योग के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को धारण करते हुए आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हम उनसे जब याद करेंगे, उनसे हम दिव्य शक्तियाँ लेंगे, दिव्य प्रकाश अपने अंदर लेंगे, तो हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियाँ आएगी। धीरे धीरे हमारे कर्म बंधन कटने लग जाएंगे, हमारी आत्मा में शक्ति आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा हमारे अंदर और हम परम शांति की अनुभूति करेंगे। अब हम बात इसके बारे में करेंगे कि इस ज्ञान से हमें प्राप्ति क्या हुई है। ठीक है, सबका लक्ष्य यही है कि हमें मोक्ष मिले। जितने भी आज लोग हैं, अगर अध्यात्म में अपना उन्नति करना चाहते हैं या अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। अब इसी ज्ञान से हम समझे हैं कि मोक्ष है क्या, मोक्ष क्या, जब इंसान शरीर छोड़ देता है तो वो जाता कहाँ है, क्या उसका रियल में मोक्ष होता है। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक उपनिषद गंगा का एपिसोड है और उस एपिसोड के बारे में मैं ज़रा सा आपको एक बताना चाहूँगी जिससे आप समझिए कि आत्माएं बार बार जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। एक्चुअली में उनका मोक्ष होता ही नहीं है। मतलब मोक्ष मतलब ये है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, वो उसमें समा जाए। ठीक है, वो अपने परम धाम पहुँच पाए, जहाँ से आत्मा आई है वो उस धाम, वो वापस उसी परम धाम में पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो कोई ना कोई उसके अंदर वासनाएं, इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वो भरी हुई होती है। अब जब आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरी रहेगी तो वो आत्मा बहुत भारी होती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर ऊपर नहीं जा पाता है और उसके अंदर ज्ञान भी नहीं होता है। तो जब हमें ज्ञान होता है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमें यहाँ पे 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस मोक्ष या जीवन मुक्ति की ओर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था कि एक बार ऐसा था कि एक चित्रकेतु की कहानी है। तो एक राजा थे चित्रकेतु, उनकी बहुत सारी रानियां थी और लेकिन उनके जीवन में एक अभाव था, वो था उनके पुत्र नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब उनको बहुत ही दुख में रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके राज्य में अंगिरस नाम के ऋषि आए और उन्होंने अपना समस्या उनके सामने रखी कि मेरे पास सब कुछ है, यश है, कीर्ति है, राज्य है, सेना है, सब सुखी है, लेकिन मेरे पास जो मेरा पिंड दान करे वो मेरा पुत्र नहीं है। तो मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए आपसे यज्ञ कराना है। तो वो यज्ञ कराते हैं। तो अब वो यज्ञ करते हैं, वो बहुत समझाते हैं अंगिरस, उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि पुत्र जो है वो मोक्ष का कारण नहीं होता है। अगर पुत्र जो है वो मोक्ष का कारण होता तो राजा परीक्षित राजा हुए, उन्होंने उनको जो था, जो उनको जब मोक्ष मिला था तो वो उनको भगवत ज्ञान से मिला था, अपने तप और बल से मिला था। उनका पुत्र उनके मोक्ष का कारण नहीं बना था। राइट, तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो इतना दुखी था तो उनको था कि नहीं, मुझे पुत्र होना ही चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ किया, उनके यज्ञ से उनके फलस्वरूप उनको पुत्र भी हुआ। उनकी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन जब उनका स्नेह एक ही रानी और अपने पुत्र में रहने लगा, दूसरी रानियां उनकी बहुत दुखी हुई और उनको लगा कि जो उनका मोह का कारण बन गया है हम उसी को समाप्त कर देते हैं। उनको राजा चाहिए था, इसलिए उन्होंने उनको अपने ईर्ष्यावश सारी रानियों ने उस पुत्र को मार दिया। अब हम जो मेन पॉइंट है हम उस पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि अब वो हर्ष अपने विषाद में, एकदम दुख में खो चुका था। अब इस समय क्या हुआ कि अंगिरस वहाँ पे आए नारद मुनि के साथ और उनका शोक कम करने के लिए उनको ज्ञान दिया। उनको ज्ञान देने लगे कि ये तेरा कभी भी हर्ष और विषाद का कारण था ही नहीं, ये तेरे मन का, तूने अपने मन से ही उसको अपना हर्ष और विषाद का कारण बनाया था। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो पुत्र का शव अपने सामने देख रहा था। तो फिर उन्होंने जब नहीं समझा तो जो नारद मुनि है कहते हैं कि नारद मुनि अपनी दिव्य शक्ति से उस जीवात्मा को लेकर आए जो वो उनके पुत्र के रूप में आया था। और फिर उसके बाद उनके पुत्र से पूछा और उनको बोला कि जो जीवात्मा को कि ये जो तू देख रहा है कि तेरे परिवार में, तेरे माँ बाप, पूरा राज्य में शोक आ चुका है, तो तू वापस इस शरीर में आ जा। लेकिन उसने कहा कि मैं अब इस योनि से जा चुका हूँ, मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं,
ठीक है, मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, मैं अलग अलग योनियों में जा चुका हूँ, यक्ष किन्नर पशु पक्षी अलग अलग योनियों में जा चुका हूँ। मेरे ये कौन से जन्म के माता पिता हैं मुझे यही नहीं पता है, और ये मेरे माता पिता के है भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं अब अलग योनि में जा सकता हूँ, मैं इस योनि में वापस नहीं आ सकता हूँ। तब उन राजा चित्रकेतु की आंखें खुली कि ये जो वो शरीर को ही सब कुछ मान रहा था, तो वो जीव आत्मा ने उसकी आंखें खोल दी कि तू मेरा कुछ नहीं लगता। जब तक शरीर, देखिए बहुत सिंपल बात है कि जब तक शरीर है तब तक हमारा उनके साथ कनेक्शन है। जैसे ही शरीर छूट जाता है तो आत्मा अपने मन, अपने बुद्धि और संस्कार के अनुसार नया जन्म लेती है। यदि आपके अंदर ज्ञान होगा, ठीक है, अब ज्ञान की महत्वता ये है कि यदि आपके अंदर ज्ञान होगा तो अब ये ज्ञान आपका मोक्ष या मुक्ति का कारण बनेगा। ठीक है, जिससे कि हम अगले जन्म अपना सुधार सके, हम इस जन्म मरण के चक्र में बार बार ना आते रहे। तो इसके लिए हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है ना तत्व है, तो उनको जो ज्ञानी आत्मा है वही उनको पहचान सकती है। जब हम देह और देह के सर्व संबंध भूल जाते हैं और अपना आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से लगाते हैं, तब वो हमारे सभी पापों का विनाश करते हैं। तो ये हमें सीखना है कि हमें इसी जन्म में क्या बार बार जन्म मरण के चक्र में आते रहना है या हमें मोक्ष की ओर जाना है। तो यदि आपका भी उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है तो आज से अभी से अपना ज्ञान मार्ग में जाइए और ज्ञान सुनना शुरू करिए। अपनी अध्यात्म की यदि आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं, यदि जो भी मुझे सुन रहे हैं और वो मुझे अगर वो पूछेंगे कि हमें अध्यात्म शुरू करना है, स्पिरिचुअल लाइफ शुरू ही करनी है, तो हम कहाँ से शुरू करें? तो सबसे पहले अपने अंदर अपने वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू करिए। उसके अंदर असीम ज्ञान है, उसके अंदर हमें आत्मा के रियल तत्व का सभी हमें ज्ञान दिया गया है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये 4 सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अपने अंदर ज्ञान की खोज को पैदा करिए, तर्क करिए, हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कब जाना है। अब आगे ये संसार कलयुग ऐसा ही चलता जाएगा, कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो कैसी दुनिया होगी? ऐसी ही दुनिया होगी। कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये सब तर्क पूछिए, अपने आप से पूछिए और इसके जवाब ढूंढिए। हमारे YouTube चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल करके, उसके अंदर 3000 के आसपास वीडियोस है। आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगी, लाइफ आफ्टर डेथ से लेके शिव, महाशिव, परम महाशिव कौन है, आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ये ब्रह्मांड कैसे बना, महाब्रह्मांड कैसे बना है, दुनिया की रचना कैसे हुई, ये दुनिया को कौन चला रहा है। ठीक है, तो ये सब वीडियोस को आप देखिए और आपको समझ आएगा, आप इस ज्ञान में और अंदर घुसेंगे तो आपका भी आत्मा का कल्याण होगा। आत्म कल्याण से ही विश्व कल्याण संभव है। परम शांति। દરેકને બેહદની પરમ મહાશાંતિ, બેહદના વિશ્વની ભૂગોળ, ઇતિહાસ, જે પણ કહીએ એ બેહદનું મેથ્સ બધું બાપુજી અહીંયા સમજાવ્યું। ઘણી જગ્યાએ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે પણ એ એક જ લેવલનું હોય છે। અહીંયા બાપુજીએ બધા સબ્જેક્ટ અમને સમજાવી દીધા અને બાપુજી 97થી શરૂ કરેલું આ જ્ઞાન, એટલે અમે 97થી એમને જે બધું એમની કેસેટો હતી એ બધી સાંભળી, કોઈ સીડીઓ હતી એ બધી જોઈ અને પછી ધીમે ધીમે બાપુજીના જ્ઞાનમાં આવી ગયા 2004થી। આપણું તો કલ્યાણ છે, આપણે વિશ્વના કલ્યાણનું સોચીએ છીએ પણ બાપુજીએ તો બેહદના વિશ્વના કલ્યાણનું કીધું। ખાલી આપણા પૃથ્વીનું નહીં, આપણે વસુદેવ કુટુંબકમ કહીએ છીએ પણ આ પૃથ્વી પૂરતું કહીએ છીએ। જ્યારે બાપુજીએ શું કહ્યું કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે ને અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં જેટલી પણ આત્માઓ છે એ બધી તમારી ભાઈઓ છે, તમારું કુટુંબ છે, બેહદનું કુટુંબ છે અને બધા માટે પ્રેમ રાખો પણ મોહ નહીં। બાપુજીએ સમજાવ્યું મોહ અને પ્રેમમાં ઘણો ફેર છે અને બાપુજીએ એટલું કહ્યું કે ખાલી અહીંયાનો નહીં, ઓલ ઓવર પૃથ્વી અને એની ઉપર જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે એ બધાનું કલ્યાણ કરવાનું છે। પણ એનું કલ્યાણ તમે કેવી રીતે કરશો? ચેરિટી બિગિન્સ એટ હોમ। તો સ્વપરિવર્તનથી તમારે તમારું બધાનું કલ્યાણ કરવાનું છે। પહેલાં સ્વપરિવર્તન કરો અને પછી વિશ્વના પરિવર્તનમાં તમે આગળ વધો। बापूजी का ज्ञान इतना इनफ है, उन्होंने हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है और तब से मुझे मन की भी शांति हुई, मेरा स्व परिवर्तन भी हुआ। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता था, डिप्रेशन था, वो सब मैं ओवरकम कर गई। मेरी लाइफ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जो मन की शांति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बापूजी ने हमें बताया कि परम शांति का मीनिंग क्या है।
परम शांति जब हम बोलते हैं तो वो हमारे आत्मा का नेचर ही परम शांत है। तो जब हम बोलते हैं तो वो हमें मिलती भी है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, परम शांति। आनंद भाई, आपने हमारे सभी दर्शक मित्रों को आत्मज्ञान, आत्मा की अनुभूति, आत्म जागृति, परम ज्ञान क्या होता है उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन अगर उनको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, आप अगर हमारे प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फ्री है। यूट्यूब पे आप सिंपली सर्च करिए बापूजी दशरथ भाई पटेल। हमारी यूट्यूब की चैनल मिलेगी जिसमें 3,35,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और आप उसमें डेली रात को 10 बजे हम लाइव प्रोग्राम करते हैं मेडिटेशन का। तो जब आप 10 बजे उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक आपको लाइव लिखा हुआ एक लोगो मिलेगा जिस पे आप क्लिक करते ही आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जैसे हमने फॉर द बिगिनर्स का प्लेलिस्ट बनाया है, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट बनाया है और इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट बनाया है, जिससे आपको और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पर आपके चॉइस के वीडियो मिलेंगे। क्योंकि 2,500 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, लाइव मेडिटेशन के 790 से ज़्यादा एपिसोड हमारे हैं, तो इसकी वजह से आपको खोजने में आसानी हो इसलिए हमने लाइव मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट बनाया। तो आप एक बार उस पर विजिट करिए। हमारी वेबसाइट भी है www.paramshanti.org और आप वहाँ से हमारे बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी, आर्टिकल, सब कुछ हमारे वेबसाइट पे है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे आपको एड्रेस मिलेगा, आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जिससे आप भर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी भी वहाँ पर है, एक फ़ोन नंबर भी है, वहाँ पे आप उससे डिटेल में माहिती ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आपके कुछ लाइव प्रोग्राम्स आते हैं डेली, ऐसा कुछ है आपका? जी, डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन के हमारे प्रोग्राम होते ही हैं। और भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो हमारी जो बुक्स हैं जैसे लाइफ इन मल्टीवर्स, जो कि हमने लॉकडाउन के दौरान ही लिखी और पब्लिश करी, इसके सिवाय हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी एक नई अभी बुक आई है पिछले महीने, लाइफ आफ्टर डेथ, फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, आवर एलियन कनेक्शन, बेहद का परम ज्ञान। और एक और भी बुक है जिसको आप PDF में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सब डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, नाम भी भूल जाते हैं, तो आप कृपया वेबसाइट पे जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए। और ये हिंदी और इंग्लिश सभी लैंग्वेज में है, मोस्टली हिंदी इंग्लिश में भी है, कुछ गुजराती में भी है। तो आत्मज्ञान की शुरुआत करने का ये सही मौका है कि ये समय आ चुका है, क्योंकि हम आपको अपील कर रहे हैं कि आत्म जागृति की ओर जाइए, समय बदल रहा है। तो शुरुआत कर सकते हैं कभी भी। परम शांति। દર્શક મિત્રો, અનંતભાઈએ આપણને ખૂબ જ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી। એના બદલ અનંતભાઈને સમગ્ર અમદાવાદ ઇનસાઇડની ટીમ તરફથી પરમ શાંતિ। परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद।